Mostly men cheat. Women don't cheat much. Why do you think that is? That a strong woman is not a marriage material. Guys do not like strong women. I was engaged to one guy who dished me at the last minute. मुझे क्या हुआ, मेरे को साइनस का ऑपरेशन कराना है. मैंने बोला अरे साइनस का ऑपरेशन तो बाद में भी हो सकता है. It's not a very major issue. Then he came back after 6 months or something. I want to marry you. I said, what happens to promote that content? You just pick up one line which becomes very controversial and you do not give उसके आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ. Context नहीं देते. आज की कितनी यंग हीरोइन से मैं बेटर लग सकती थी और बेटर काम कर सकती थी. अभी आप सिचुएशनशिप करेंगे और ये सब करेंगे तो आई डोंट नो वेयर द यंगर जनरेशन इज गोइंग. यू बिलीव इन मैरिज? गुड. कुछ वुमेन तो दे आर अर्निंग मोर देन मेन, तब तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ जाता है. Out. देन तो मतलब शादी कैसे सरवाइव करेंगी आई डोंट नो. पहले फिजिकल अट्रैक्शन होता है, सेक्स होता है, उसके बाद आप साथ रहने लगते हैं. दैट इज द क्रूशियल थिंग. लविंग एंड लिविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. दूसरे कैरेक्टर नए नए आया विनोद और ये तो मतलब हम तो पीछे छोड़ दिया. तो इतने बड़े हिट हो गए हैं बिकॉज पीपल रिलेट टू देम. मैं तो फिर भी थोड़ी, क्योंकि मैं मॉडर्न भी दिखती हूँ ना, वो लोग तो वैसे ही दिखते हैं, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही दिखते हैं. आई लव द फ्रेंडशिप ऑफ दिस हेलेन वहीदा जी एंड आशा जी. आशा पारेख, दे गो फॉर हॉलीडेज, दे आर टुगेदर, दे वर्क टुगेदर. पुराने जमाने में या अभी भी देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर. लाइक मैन इज द प्रोवाइडर एंड वुमन इज अ नर्चरर. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. हाँ, या बेटी बचाओ. नहीं, बेटी तो पढ़ा दी, अब बचाओगे कैसे? उसको पढ़ाई के साथ क्या करोगे? जॉब मिलती नहीं, जॉब में रिस्क है, रात की जॉब आप कर नहीं सकते, अकेले आ जा नहीं सकते, जॉब है कहाँ? जॉब में सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो सकती है, फिर क्या करोगे? वेलकम बैक टू ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे, नीना जी. लास्ट टाइम का एपिसोड इतना मजेदार था एंड पीपल लव्ड वाचिंग इट. वन ऑफ आवर बेस्ट परफॉर्मिंग वीडियोस ऑन यूट्यूब. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू. So how's life been? नो कंप्लेंट्स. No complaints. Okay. Gratitude. Thank you for everything. Yeah, not bad. Touch wood. As we're doing an interview today, so many of your interviews have gone viral, right? Because people really relate with you, things you say. Do you find yourself being more guarded with interviews, or you're just like, I'm going to be me? No, I try to be guarded. Okay. I'll tell you why. Because what happens to promote that content, you just pick up one line which becomes very controversial and you do not give उसके आगे क्या हुआ पीछे क्या हुआ. Context नहीं देते. So फिर बेचने के लिए फिर वो बड़ी अच्छी लगती है लोगों को, कंट्रोवर्सी हो जाती है. So now I try and control myself a bit. It's sad because you're Yeah, so... what to do? What to do? Okay. Let's talk a little bit about most people when they're talking about your career, they say that you had this amazing opening and then there was a period of silence and then there was a comeback, so to speak. Do you ever think that ye kya comeback tha? Like, I was there, my talent was there, it was just about finding the right opportunity or getting the right opportunity. I keep thinking, what did I do wrong that I got my due late? And I see that mostly it has been my fault. Okay. And but now what's the point of thinking of the past? You have to move on in life. I cannot become that now because of my age. Even if you look younger, they are not going to give you a younger role. So that is out of the question. So whatever is coming my way, it's quite nice. So I do think, but I try my best not to think कि मुझे तब क्यों नहीं मिला जब मैं यंगर थी, तब मैं कितना कुछ कर सकती थी. आज की कितनी यंग हीरोइन से मैं बेटर लग सकती थी और बेटर काम कर सकती थी. ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती दिमाग में, बट व्हाट्स द पॉइंट?
Why do you think that it was mostly your fault? Like, you know, you said that line. Because sometimes I didn't have patience. Sometimes I was looking for wrong things. Sometimes, most of the times, I had less self esteem. So, these are all the factors which hampered my growth at that time. Hmm. And of course, nobody to show me a direction, no godfather or godmother, or, because I have realized that this is a business. Yeah. So, there is nothing to get emotional about. It's a business. And I didn't know the rules of this business, and I did some wrong things. The first wrong thing I did was doing Sat Sat, because of which my heroine बनने का chance just खत्म हो गया forever. Why do you say that? Because it's a truth. Okay. If you see Sat Sat, you'll come to know. Okay. So, so it's all my fault. And you see, I have realized that if you start thinking like this, that it's your fault, then you become less bitter. Hmm. Yeah. नहीं तो अरे दुनिया ने मेरे को ये कर दिया, दुनिया ने मेरे ये किया, मैं शराब पीने लगूँ, दुनिया ने ये किया. नहीं, मैंने किया है ना, तो मैं किसी को क्या बोल सकती हूँ. मेरी गलती है तो एक्सेप्ट कर लो. Yeah. It's a good way of looking at It's things. the only way. It's the only way. There's no alternative. Yeah. Do you think the industry comes with a expiry date for women, right? कि इधर तक काम करो. No, the God has made us with an expiry date. Industry की क्या बात कर रहे हैं? Our society is also like that. Give me an example. Let's forget films and industry. फिल्म को छोड़ दो ना. Hmm. You think हमारी कितनी पॉपुलेशन का कितना परसेंट women are now like you and me? Hmm. कितना परसेंट? पॉइंट Yeah. सब बाकी क्या है? वही है ना, वही है. That's the truth. तो सास बहू क्यों चलता है? बिकॉज दे आइडेंटिफाई. सो इट्स अ वेरी बैड सिचुएशन. अभी हम लोग थोड़े लोग यंग लोग, ये जो आपके यहाँ ऑफिस में बैठे हैं, ये सब हम नहीं हैं, हम माइनॉरिटी हैं, हम इंडिया नहीं हैं. सो हमारे देश में क्या है मोस्टली वुमेन की हालत कि वो अरेंज मैरिज हो जाएगी, उसके बाद आप बच्चे पैदा करेंगे, उसके बाद husband can do whatever. Sometimes they don't do, sometimes they do, most of the times they do, and you look after the kids. And in even the staff which I have, my home staff, like my cook or मेरी जो छुट्टा बाई आती काम करने के लिए, उनका क्या है सबका? They have been married, they have kids, the husband has gone away with another woman, they are all looking after the kids. क्या बदला? कुछ नहीं. तो क्या हम इंडस्ट्री क्या करेगी? समाज ही ऐसा है, तो इंडस्ट्री को वही बनाना पड़ेगा ना जो समाज है. आई विल फील वेरी हैप्पी दैट मेरे को इतनी तकलीफ है, जो ये हीरोइन टीवी पे आती है इसको भी इतनी तकलीफ है, तो आई फील वेरी गुड कि आई एम नॉट द ओनली वन सफरिंग. एंड वी फॉरगेट ना, लाइक ये ह्यूमन ऑफ बॉम्बे में सोफे में बैठ के हम बात करें अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, हम इंडिया नहीं है. सो लेट अस नॉट पुट ऑल द ब्लेम ऑन. सही बोल रही हूँ मैं? हाँ, ठीक है. लेट्स नॉट पुट ऑल द ब्लेम ऑन द इंडस्ट्री. इंडस्ट्री बेचारी क्या करेगी? Yeah. It's society, basically. हाँ, हम एक हिंदी में हम पढ़ते थे, साहित्य समाज का दर्पण होता है. दर्पण मीन्स मिरर. Yeah. साहित्य लिटरेचर. तो जो समाज में होता है वही साहित्य होता है, वही पिक्चर बनेगी ना. Hmm. It's very true. आप हमारे लिए कुछ बनता है तो वो कितने लोग देखते हैं, है ना? सो दैट इज द थिंग. What do you think is? Why are you feeling so sad? Is it sad? Looking so Because sad. it just, it hits a nerve. You start thinking. No, like because- मैं thought भूल गई क्योंकि you start reflecting ना कि. हाँ, क्योंकि तुम लोगों को इतना एक्सपीरियंस नहीं है. क्योंकि where I come from a very humble background. My father was in a office, STC, and my mother very educated
double MA at her time and we had enough to eat and this thing. But हमारा क्या 9 बजे तो अंधेरा हो जाता था, 8 बजे दूध पी के सो जाते थे. मुझे तो क्लब यहाँ के पता चला है क्लब भी कोई चीज़ होती है. हमारा वो टाइप नहीं था. हमारा मतलब एंटरटेनमेंट वाज गोइंग फॉर अ मूवी समटाइम्स, और वो चित्रहार, और एक संडे को मूवी देखते थे टीवी में, और बहुत कुछ बड़ा ओकेजन हुआ तो बाहर जाके खाना खा लेते थे. दिस वाज इट. Yeah, this was life. आपका वैसा नहीं है, Hmm. हमारा भी चेंज हो गया है. बट आई हैव सीन ऑल दैट ना. Yeah. I've recently seen, and it is not small towns. In Delhi, my niece was doing her CA, very bright girl, and she got married, and they harassed her so much. Harassed her how? जैसे वो नीचे आलू खरीदने गई तो मुझसे पूछे बिना क्यों खरीदने गई आलू. CA कर रही है वो हो भी गई अब CA. अभी बोलो ना, क्या क्या बदला है. एक के दुखे हम बदल गए हैं, और जो बदले भी हैं उनकी बुरी हालत होने वाली है. Yeah. मुझे लगता है. Makes you think. It makes you think. अभी आप सिचुएशनशिप करेंगे और ये सब करेंगे तो आई डोंट नो वेयर द यंगर जनरेशन इज गोइंग. नोबडी वांट्स टू कमिट. Yeah. आर यू मैरिड? No, I'm not married yet. यू हैव अ बॉयफ्रेंड? Yeah. अच्छा. हंसी हो रही है, सब हंस रहे. यू बिलीव इन मैरिज? गुड. I believe in love and marriage and ग्रेट. yeah, and the institution of building a life together. So, इट्स नाइस. but you often feel misunderstood. When I was building Humans of Bombay, मैं कर रही थी. मैं अभी भी my days are 15 hours, 16 hours. मैं सुबह जाती हूँ, evening. Society tags you as a particular thing, right? That she's not marriage material, or she can't build a home because वो इतना काम करती है. Did you ever feel misunderstood? Ever feel क्या? Every minute, every moment of my life, I know that a strong woman is not a marriage material. Guys do not like strong women. Most of them. इनकी बात नहीं करें जो यहाँ बैठे हैं, क्योंकि ये डिफरेंट, वो माइनॉरिटी वाले हैं, पर ये भी पता नहीं शायद ऐसे ही हो. बट they don't like, they like बिचारी women. They don't like strong women. They hate strong women. Yeah, आप बताओ मैं सही बोल रही हूँ गलत? सही बोल रहे हो. Absolutely. They don't like strong women. जिनका अपना कुछ सोच हो और काम करते हो और काम में बहुत लगाव हो. They don't like. They want power over you. Yeah. I'm talking about general, huh? I'm Yeah. not talking about everybody. Correct. Of course, there's obviously exception to rule तो होता ही But है. mostly, say 95% of our population. और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरे को एक स्टेटमेंट देनी है बड़ी ज़बरदस्त. मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने देखा हुआ है, अपने घरों में देखा हुआ है, अपने पड़ोस में देखा हुआ है. So what do you think कि आपके लाइफ में what was the most misunderstood phase? Everything, Everything. everything, every phase is misunderstood. So ठीक है. What to do? How can you make so everybody understand you? अब तो बुक भी लिख दी मैंने. Yeah. और क्या कर और सकती क्या ही कर सकते हैं. हूँ? बट आपने कभी ये ट्राई नहीं किया कि मैं परसेप्शन बदलूं, कि मैं ये कर रही हूँ इस वजह से? नहीं, परसेप्शन मेरा थोड़ा बदला है वीज़ा वी मीडिया. वो बदला है इंस्टाग्राम पोस्ट से. ओके. जैसे कि बाहर लोगों को, छोटे शहरों में खासकर लोगों को लगता है कि ये जो हीरोइनें होती हैं बट फिल्मों में काम करती है, सोने के पलंग में सोते होंगे. तो जब मैंने छोटे छोटे खाने का पोस्ट करते कुछ करते तो लोगों को लगता है कि ये हमारे जैसे है. सो उससे थोड़ा बदला है. प्लस बधाइयों करने से बदला, करियर वाइज भी बदला, वैसे भी बदला कि आई कैन लुक लाइक दिस. आपने उस समय पोस्ट भी डाला था कि आई एम लुकिंग फॉर वर्क. उससे नहीं मिला काम. नहीं. ओके. बट एटलीस्ट
वो बातें तो शुरू हुई, that बातें perception. शुरू हुई, पर काम फिर भी छोटे छोटे रोल ही मिले थे 2, जैसे पहले मिलते थे। पर बधाई हो जिसमें ना मैं डायरेक्टर को जानती थी ना कुछ, उससे मेरा पूरा मतलब मैं अच्छी एक्ट्रेस बन गई, मैं गुड लुकिंग भी हो गई, मैं घरेलू भी हो गई, उससे सब बदल गया। तो आपने कौन सा ये लोग हाइंडसाइट में कहते हैं कि नीना जी बहुत ब्रेव है, ब्रेव डिसीजन लिया है, या वाओ ऐसा हुआ है, हाइंडसाइट में उस वक्त तो कुछ अलग ही कहानी होती। व्हाट इज वन ऐसे जो ब्रेव डिसीजन लिया विच यू थिंक वाज वेरी डिफिकल्ट, और मतलब बोलने के लिए तो आसान है कि ब्रेव डिसीजन दिस दैट, बट इट वाज टफ फॉर यू। डिसीजन का क्या मतलब होता है कि आपने तय किया है कि मैं अपने जीवन में मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं हरियाणवी लड़के से शादी नहीं करूंगी, मैं सीए से शादी करूंगी, ये डिसीजन होते हैं ना। मैंने कभी ये डिसीजन नहीं लिया था कि मैं बिना शादी के बच्चा पैदा करूंगी, कभी सोचा भी नहीं था। लाइफ में आपके जो डिसीजंस होते हैं वो अलग होते हैं। Circumstances put you in a situation where you have to choose certain things, where you have no way out. Yeah. So I had said, I was engaged to one guy who dished me at the last minute, and I was like, in my mind, I was set to have a kid, and I was engaged, ring bhi ho gayi thi, and then suddenly he said, I had gone to buy my clothes and jewelry to Delhi, and I got a call from him that अभी नहीं कर रहे। मुझे क्या हुआ, मेरे को साइनस का ऑपरेशन कराना है। मैंने बोला अरे साइन का ऑपरेशन तो बाद में भी हो सकता है, इट्स नॉट अ वेरी मेजर इशू। आज तक मुझे नहीं पता, मैं उसकी मम्मी से, उसके पापा से, सबसे पूछती रहती थी क्या हुआ, आज तक मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। देन ही केम बैक आफ्टर 6 months or something, I want to marry you. I said now I don't. Even then I said, first tell me why you changed that thing. He doesn't tell. Then he wanted to marry me. So you don't know what circumstances you, me, she is going through, और हमको डिसीजन लेने पड़ते हैं मजबूरी में, या और कोई चारा नहीं होता, जो भी होता है। तो लेट्स नॉट जज पीपल दैट दे मेक दिस डिसीजन, पागल है, बेवकूफ़ है, चंट है, ऐसा भी बोलते हैं ना। हाँ, मसाबा इज अ वेरी नाइस नेम कॉल्ड चंटोमती, जिस बड़ी चंटोमती है, ये भी बोलते हैं ना चंटोमती। बोलने दो, क्योंकि मेरे को आप ना फाइनेंशियल मदद करें ना मेरे को इमोशनल मदद करें, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है आप क्या बोलो। या तो मेरी मदद करो तो मुझे फ़र्क पड़ेगा, तब मैं जाके लड़ूंगी कि तुमने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला। इफ़ यू आर माई फ्रेंड एंड I have a relationship with you, then I will say. They don't care a damn. Yeah. मैं यंग गर्ल्स को ये बोलूँगी, मैं किसी भी गर्ल को, यंग हो, ओल्ड हो, मिडिल एजड हो, कि मैंने जो किया उस वजह से मत करना, क्योंकि मैं ये कहूँगी 2 चीज़ें। एक तो अगर आप मेरे जैसा करना चाहते हो, बिना शादी के बच्चा पैदा करना चाहते हो, बहुत मुश्किल है, मत करना, बहुत कठिन है। It's a very difficult path. Just don't do it because ABC has done it. Number 1. Number 2, acting in films or TV is not a very nice profession. Yeah. अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते तो जाओ करो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि if I have done well, I don't get the fruit. I don't get the success because of that. Yeah. It depends on so many things. आपका रोल अच्छा हो, फिल्म बने, फिल्म रिलीज हो, फिल्म चले और उसमें आपका अच्छा रोल हो। ये तो है नहीं ना कि मैंने 100 रन बना लिए तो मुझे अगले मैच में खिलाएंगे, 100%. या मेरी पेंटिंग अच्छी है तो वो बिकेगी। What about love? Like आप पहले बोल रहे थे situationships, इतने सारे terms है, right? And women also, some men feel कि बहुत complicated हो गया है ये चीज़, but people still vie for it, और फिर वो जो compromise, settlement, उस बारे में they go towards that direction, right? कि ये तो करना है, time bound है,
biological clock is ticking, etc., etc. प्रॉब्लम हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक की है ना लेडीज की, बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं लाइफ में. I froze my eggs. अगर अगर एक आदमी 70 में बच्चा पैदा, अगर हम भी 70 में करते तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी लाइफ में. प्रॉब्लम ही बायोलॉजिकल क्लॉक है. अब आप सब लोग काम कर रहे हैं, लोग बच्चा नहीं पैदा करना चाहते क्योंकि वो काम में उनको मज़ा आ रहा है, शादी नहीं करना चाहते. फिर शादी की उम्र निकल जाती है, फिर जब शादी की उम्र बढ़ी है तो ऑल द गाइज आर टेकन एंड देन यू फॉल फॉर अ मैरिड मैन एंड देन यू हैव मोर लफड़ा. so there is no way out. Yeah. मतलब आप ऐसे भी मरोगे, ऐसे भी मरोगे. ये सिर्फ इसीलिए बिकॉज बायोलॉजिकल क्लॉक, ये सबसे बड़ा कल्प्रिट है और कुछ नहीं है. सो इमेजिन अगर नहीं होता बायोलॉजिकल क्लॉक, यू टेल मी क्या होता. लेट्स सी द सिनेरियो. सो आई फ्रोज माय एग्स. हाँ, तो वो बहुत ही मतलब प्रिविलेज्ड ऑप्शन है. हाँ हाँ ऑब्वियसली हाँ, बहुत प्रिविलेज बहुत है. ज्यादा ये मुश्किल भी है, इंजेक्शंस एंड दिस एंड दैट. या फॉर 2-3 वीक्स Yeah, इंजेक्शन. बट वो ना मेंटल जो प्रेशर है वो दैट इज थोड़ा ईज्ड बिकॉज हाँ, वो थोड़ा सा ईज होता है. हाँ. पर ये तो सब लोग नहीं कर सकते ना, एब्सोल्युटली नॉट. है ना. Yeah. और वो भी बहुत लंबा. उसके बाद फिर आप अगर आपकी उम्र ज़्यादा तो यू कांट इवन कीप द एम्ब्रियो विद इन यू, देन यू हैव टू गेट ये सरोगेसी. वो अभी बहुत मुश्किल हो गई है. फिर आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका, लंदन. कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है. मैं क्या कह रही हूँ, समझो बायोलॉजिकल क्लॉक में ये होता कि वीमेन ऑल्सो कुड गिव बर्थ एट 70 एट एनी टाइम. एट एनी टाइम. करेक्ट. एनी टाइम मतलब 70 हाँ, चलो, 60 okay, चलो. हाँ, okay. हम फिर क्या होता दैट. फिर क्या होता है दुनिया का, ये सोच के बताओ. अच्छा ही होता. nobody would be settling, nobody would be like बच्चे पैदा करने हैं, टाइमलाइन नहीं होता. हाँ. शादी नहीं, पर बड़ा बुरा होता जो कि बच्चे जब बड़े होने से पहले ही मर चुके हो. oh my God. माँ बाप. हाँ वैसे भी है करेक्ट. ना. या और देखो तो ठीक ही बना, पर आई डोंट नो. बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है बिकॉज आई टेल यू ऑल्सो ये जो इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है ना, वो टैग बहुत ही मतलब ओवर यूज और अब्यूज हो चुका है सोशल मीडिया पे कि आई एम स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन. लेकिन वो उसका भी प्राइस होता है टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन. मैं तो बोल रही हूँ, men don't Yeah. like strong independent women. Yeah. They don't like. और कुछ women तो they are earning more than men, तब तो बिल्कुल ही भट्टा बैठ जाता Out. है. Then तो मतलब शादी कैसे survive करेगी, I don't know. So I don't know. But ये है. ठीक है, तो हमने इतनी सारी बातें की. सो फाइनली व्हाट आर योर फाइनल थॉट्स ऑन लव एंड मैरिज? No thoughts on love. नो थॉट्स ऑन लव. ओके. I think love is only between parents and child. द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव. Love. Purest भी नहीं love. बाकी मुझे लगता है पहला, जो मुझे लगता है, मैं आई मे बी रॉन्ग, पहले आपका फिजिकल अट्रैक्शन होता है बिकॉज यू आर दैट एज एंड वट एवर. पहले फिजिकल अट्रैक्शन होता है, सेक्स होता है, उसके बाद आप साथ रहने लगते हैं. दैट इज द क्रूशल थिंग. लविंग एंड लिविंग आर टू डिफरेंट थिंग्स. बाहर रह के लविंग इज वेरी नाइस. व्हेन यू लिव तब आपको सब पता चल जाता है एक दूसरे के बारे में. तब आप एडजस्ट करते हैं, तब आपको धीरे धीरे बच्चे होते हैं, तब आपको आदत हो जाती है एक दूसरे की. दैट्स हाउ इट इज. लव वव कुछ नहीं है, बच्चे से ही लव होता है. व्हाट अबाउट इनफिडेलिटी कि एट सम पॉइंट कपल्स चीट और पार्टनर्स चीट? ओनली मोस्टली men cheat. Women don't cheat much. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? वो बच्चों में लगी रहती है. There is this book called, new book of Ken Follett called Circle of Days. Circle of Days. Okay. It's amazing. It talks about Stone Age. So there was this tribes. Like one is farmers. One is वो shepherds type of thing. मैं एकदम भूल गई. 3 Different ट्राइब tribes. है. एक वुडलैंडर्स है, एक वो जो शीप
वगैरह को करते हैं और एक फार्मर्स है। तो उनका क्या होता है कि उनके यहाँ एक फेस्टिवल सा होता है समर में, जहाँ दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के लोग आते हैं। उस वक्त बार्टर ही होता था कि तुमसे मैंने लेदर का जैकेट लिया और तुमने मुझे हथियार दिया, तुमने मुझे चीज़ दिया और तुमने मुझे मीट दिया, ऐसा बार्टर होता था। और कुछ वो टाइम की बात कर, तो वहाँ पे वो आते थे और वहाँ पे यू कुड स्लीप विद एनीबडी, द वुमेन एंड मैन। वो इसलिए करते थे ताकि उनका वो अच्छा हो, क्या बोलते हैं, ब्रीड, आपस में शादी बच्चा ना होने से वो करते थे। और भी कारण ऑब्वियसली हैं। तो उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उसको पूरा ट्राइब संभालता था। इफ दे डोंट नो हु इज द फादर, मदर तो पता ही होता था। सो ऐसा एक नॉर्मल होता था, कुछ उसमें नया कुछ वो नहीं है। पीपल यूज्ड टू गो, खेत में लेट गए, कहीं लेट गए, लाइक दैट। सो देयर इज अ कपल हु इज वेरी मच इन लव. The boy has had a very bad childhood and all, and they both are very very happy, and they have 3 children, and they don't go to this festival. They go but they don't sleep with other people. So शादी के आई थिंक 12-13 साल 15 साल ऐसे कुछ, 13 साल ऐसे कुछ हो चुके होते हैं. So he writes that one day that guy says कि I love you very much, I've never been to this festival but I feel like going now. I need to go. So she says, yeah, you're right, even I need to go. Because their sex thing is over. And they're just going for that. That's what he's writing. Wow, very interesting. So interesting. I'll read it. Yeah, I'll read it. So interesting. So you think that... नहीं, I'm not thinking, but I'm saying, क्या बोलो आप? फिर आप बोर हो जाते हैं, फिर you have no physical interest in each other. That's what happens. Some people don't, some men also don't go anywhere else because they are happy not being very physical also, so it's okay. They are interested in other things. Some are not happy. It's women mostly with children around, they are very busy. Yeah. I think that drive kind of goes down eventually. वो drive goes down because of the kids. I think physically also, maybe. Biologically. Maybe. All this is maybe. This all may be subject to opinion. अब मैं ये नहीं कहना चाह रही कि सब लोग, क्योंकि हमारा कोई ट्राइब में संभालेगा नहीं बच्चा. We have to take care of our own. Take care of on your own. By also गाली वाली खा के. Yeah. Meenakshi, this is why you are very relatable. I'm forgetting my questions because I'm just thinking इतना आपके answers के बाद मैं track भूल रही हूँ. But it's a good thing. Okay. We'll talk about another life-changing moment आपके life में, पंचायत. I'm a big fan, by the way. मेरा सबसे favorite scene वो जनगण मन वाला था. मेरा भी. Which was so sweet. Actually मेरा भी था. Yeah. In all seasons वो मेरा favorite. Yeah. Do you think that also changed the trajectory of how you were seen? Because आपने ये role मतलब इस तरह से gravitate किया, you know, you went from a very meek to a very strong personality. Tell me a little bit about Panchayat. Yeah, so right now people know me, they recognize me by Badhai Ho and Panchayat, but in some areas they just know me from Choli ke Piche. So this is my trajectory. दोनों extremes. इतना काम करने के बाद. Yeah, so पंचायत तो शुरू में मैं बहुत उनसे बोलती थी, अरे मेरा फर्स्ट एपिसोड में बोला बहुत कम. माय हस्बैंड आल्सो सेड तुम्हारा काम तो अच्छा है पर बहुत कम है. यू नो फुटेज कम थी मेरी. सो एज द डायरेक्टर आई सेड कि मेरा इतना कम, सेकंड में भी मेरा काम कम था. अच्छा काम था पर कम था. सो दे सेड कि हम धीरे धीरे, क्योंकि वी गॉट 5 सीजन्स का दिस थी, सो हम धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं. पहले में सब कर देंगे फिर तुम कहाँ जाओगी, यू नो. देन
तो मारना पड़ेगा तुमको. So anyway, so and the director is very good, and the most important thing is the writing is amazing. It's so funny in the That smallest of ways. क्या नाम है, अभी नाम याद आएगा, मारेगा अगर ये देख रहा होगा नाम Writer? नहीं. हाँ, चंदन हाँ. खुद लिखता है सारा, इतना अच्छा लिखता है, बहुत अच्छा लिखता है. Yeah. और experience कैसे रहा, you know, with all of the characters and so loved the characters. या अभी तो जो दूसरे कैरेक्टर नए नए आए हैं, विनोद और हाँ. ये तो मतलब हम तो पीछे छोड़ दिया, ये तो इतने बड़े हिट हो गए हैं बिकॉज पीपल रिलेट टू देम. मैं तो फिर भी थोड़ी, क्योंकि मैं मॉडर्न भी दिखती हूँ ना, वो लोग तो वैसे ही दिखते हैं, वो रियल लाइफ में भी वैसे ही दिखते हैं. Really? हाँ, दे आर सो रियल. हाँ. अब मैं दूसरे प्रकार के कपड़े भी पहन लेती हूँ तो फिर मैं बिल्कुल अलग इसमें दिखती हूँ, पर वो लोग तो वैसे ही हैं. आप अभी मंजू देवी नहीं लग रही है. वही तो कह रही हूँ, आज तो फिर भी मैं ढकी हुई हूँ. सो या इट द राइटिंग इज अमेजिंग एंड उफ, पहले 2 में तो हम मर गए थे, क्योंकि वी यूज्ड टू शूट इन भोपाल इन अ रियल गांव in May, June, which was 47 degrees, and it was like a punishment. और जब हम खड़े होते थे धूप में ना, अब थोड़ा तो टाइम लगता है साउंड रोलिंग उसमें छाते लेते थे, छाते हट जाते थे, तो इट वाज, और फिर वो ऐसी वाली आंधी चलती थी वहाँ, गर्म हवा वाली. सो बहुत मुश्किल है, पर वो अच्छा काम तो ऐसे ही होता है. कोर्स इजी तो बिल्कुल नहीं है. बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल. तो आपका सबसे फेवरेट बिहाइंड द सीन पंचायत मेमोरी क्या है? हाँ, एक मेरे को बड़ी मज़ेदार मेमोरी लगती है, मतलब मेमोरी नहीं है, इट्स अ वेरी फनी थिंग. तो हमसे ज़्यादा यूनिट बहुत परेशान होता था. हमको तो एक्टरों को अंदर बिठा दिया, पंखा दे दिया, वो बेचारे धूप में सारा दिन सब एकदम काले हो चुके होते थे. तो फिर इन्होंने भी, अब बीमार भी होते थे लोग, है ना, धूप लग जाती थी, पेट खराब हो जाते थे. सो एक सीज़न इन्होंने बोला हम सर्दी में करेंगे. तो गर्मी में हमको जहाँ शूट था गांव, वहाँ पे पास में रिजॉर्ट था, कुछ एक्टर लोग, कुछ डायरेक्टर वहाँ रहते थे, कुछ लोग, 2-3 होटल्स अच्छे थे, उसमें सब रह जाते थे. इट वॉज वेरी नाइस. 15-20 minutes to the location. हाँ. अब जब ठंडी में किया तो कोई होटल अवेलेबल नहीं था, क्योंकि वो शादियों का मौसम होता है, तो रिजॉर्ट में शादी करती. सो वी हैड अ चॉइस बिटवीन 47 degrees और 1.5 hours travel every day, coming and going. Oh my god. 3 hours. So what was the pick? 3 hours. 3 hours. फिर भी गर्मी नहीं चाहिए. But it's a beautiful show और वो एकदम आराम से देख सकते हैं. It's feel good. Yeah. It's very nice. Okay. Let's talk about friendships. आपके लिए throughout your life, right? Like हम discuss कर रहे थे कि through the ups, the downs, how important have friendships been? आई थिंक फ्रेंडशिप्स आर वेरी इम्पोर्टेंट. किसी ने मुझे बोला दोस्ती आपके बुढ़ापे का खजाना होती है. मतलब कि आप क्या करोगे ओल्ड एज में, व्हेन यू डोंट वांट टू वर्क, यू वांट टू गो टू विद फ्रेंड्स, गो आउट समवेयर. आई लव द फ्रेंडशिप ऑफ दिस हेलन, वहीदा जी एंड आशा जी. Asha Parekh, they go for holidays, they are together, they work together. मेरे बहुत फ्रेंड्स नहीं बने, क्योंकि मेरे फ्रेंडशिप में ना थोड़ा टाइम भी देना पड़ता है. मेरे पास टाइम नहीं था. काम करो, बच्चा, पापा, सो आई डिडंट हैव टाइम टू रिलैक्स. चल आज फ्रेंड के घर बैठ के आऊँगी, गप्पे मार के आऊँगी. सो आई डिडंट हैव दैट, सो आई मिस दैट. आई मिस दैट. And within the industry when you're shooting, वो friends बन जाते हैं. Is that a? बन जाते हैं, हाँ, अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं. फिर वो अपने काम में चल जाते हैं, हम अपने काम में चले जाते हैं.
So it's not like वो ऐसा कोई नहीं बना जो कि पिक्चर के बाद भी सोशली हम मिले। एक शुभ मंगल की टीम हम लोग मिलते हैं कभी कभी, डिनर पे जाते हैं, बट वो भी सबका मिलन मुश्किल होता है, कोई कहाँ शूट कर रहा है, कोई कहाँ शूट कर रहा है, लाइक दैट। दैट्स अ प्रॉब्लम। That's a problem. What about motherhood and now grandmotherhood? उसका evolution कैसे रहा है? How do you feel? I feel great. I don't still believe that there's a little baby. Yeah. Yeah, it's amazing. Hmm. It's amazing. So when you talk about motherhood, career, what would you like to tell women who are trying to do both? Not necessarily as a single mother, but trying to have their own देखो, identity. मैरिड लड़कियां भी सिंगल मदर ही जैसी हो जाती है, क्योंकि आजकल अच्छा कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए आदमी को बहुत काम करना पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट वर्किंग से, वो सुबह जाता है रात को आता है, वो थका हुआ आता है, तो बच्चे का तो आपको ही करना पड़ता है इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, और इफ़ यू आर डूइंग से टीचर्स जॉब और सम स्मॉलर जॉब। दोनों जॉब करते हैं तो बच्चे का बहुत मुश्किल हो जाता है, दोनों अगर फुल टाइम जॉब करते हैं। आई डोंट नो, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कई बार मैं सोचती हूँ कि पुराने ज़माने में या अभी भी कई जगह देयर वाज अ डिवीजन ऑफ लेबर, लाइक मैन इज द प्रोवाइडर एंड वुमन इज अ नर्चरर। Okay, yeah. सब खुश थे, आदमी भी जल्दी आ जाता क्योंकि ज़रूरतें भी इतनी नहीं थी, औरत भी अपना दोपहर में गप्पे मार ली, पड़ोस में बैठ के गप्पे मार ली, शाम को तैयार हो गई। उस पर भी प्रेशर नहीं था, आदमी पे भी प्रेशर नहीं था, but then it was unfair to women also, so that is a very complicated thing. But I think people were much happier there, I think so. So how do women? जैसे मैंने बोला ना अभी, आप पढ़ा लिखा दो क्या गर्ल चाइल्ड क्या बोलते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, उसके बाद नहीं बेटी पढ़ा दी, फिर there's a slogan. क्या है? आई नो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हाँ, या बेटी बचाओ। नहीं, बेटी तो पढ़ा दी, अब बचाओगे कैसे? उसको पढ़ाई के साथ क्या करोगे? जॉब मिलती नहीं, जॉब में रिस्क है, रात की जॉब आप कर नहीं सकते, अकेले आ जा नहीं सकते, जॉब है कहाँ? जॉब में सेक्सुअल हैरेसमेंट भी हो सकती है, फिर क्या करोगे? सो बेटी को पढ़ा लो, उसके बाद क्या करो? मैंने उस दिन बोला पढ़ा के बर्तन मांजो, बोला ना मैं किसी उसमें इंटरव्यू में। So how do women retain their identity? कैसे कर सकते हैं? ये सब जो इतने complicated structures है कि काम भी थोड़ा कम करो या पार्ट टाइम करो, बट स्ट्रॉन्ग भी बनना है, इंडिपेंडेंट भी बनना है, अपनी खुद की लाइफ भी बनानी है, बच्चे भी है, तो सब क्योंकि कुछ तो नहीं मिलता ना सबको, क्योंकि वो वुमेन एम्पावरमेंट इतना बड़ा ये जो टर्म हो गया है, वो एक्चुअली है क्या? कुछ भी नहीं, बकवास है। अब आप ये मत डाल देना वुमेन एम्पावरमेंट बकवास बोल रही है मीना। हम कॉन्टेक्स्ट देते हैं रील्स में आगे और पीछे। क्या एम्पावर हुआ है? कुछ नहीं, देखो ना रोज क्या क्या न्यूज़ आती है। क्या कर सकते हैं? मैं सोल्यूशन आपसे सुनना चाहती हूँ। आई हैव नो सोल्यूशन। मैं बोल रही हूँ ना, या तो पुराने ज़माने में चले, आप घर में बैठो, बच्चा पालो, आराम से लिपस्टिक लगा के, लाल लिपस्टिक लगा के घर में बैठो, या फिर आप बच्चा मत पैदा करो। फिर कैसे करोगे आप सब कुछ? फिर बच्चे को क्रीच में डालोगे, वो तो सब अफोर्ड थोड़ा ना कर सकते। अच्छा, जॉइंट फैमिली में बच्चे पल भी जाते थे, अब तो जॉइंट फैमिलीज भी नहीं है, सब न्यूक्लियर हो गए। हाँ, अभी आदमी लोग सब यहाँ आ गए शहरों में, लेडीज़ वहाँ अकेली हैं, आपस में है उनका बहन चारा, बट आई हैव नो सॉल्यूशन एक ही है। क्या क्या? अभी जो बोला था पहले, बताओ। सोसाइटी सॉल्यूशन एक ही है, क्या? जो हो नहीं सकता।
वो जो फर्टिलिटी की एज, हाँ, क्या बोल रहे थे? Biological clock is the solution. There's no other solution. I can't see. आप ये भी नहीं कह सकते कि आप शादी मत करो, वो भी आपकी नीड है। करेक्ट। आपको पढ़ाया तो आप काम भी करना चाहते हैं, वो भी आपकी नीड है। आई डोंट नो, इट्स कॉम्प्लिकेटेड, वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक रीजन ये हो सकता है, वो उसको हमारे 100 साल लगेंगे कि आवर men, I'm not talking about these kind of men, I'm talking about our men also become like men abroad who do half of the kitchen work and half of woman's work also, then maybe it can happen. हमारे यहाँ तो मतलब मम्मी जी वो बेटे को पानी का गिलास भी नहीं उठाने देती ना, बहन को बोलती है भाई को पानी दे दो। इट्स लाइक दैट। इट इज। सो ये जो हम चीज़ें बात कर रहे हैं, राइट, इट्स टिपिकली कि लड़की बोल्ड है, आपको भी कई बार बोल्ड बुलाया गया है जस्ट बिकॉज आप अपने टर्म्स पे लाइफ जी रही है। नहीं जी रही, पर ठीक है। हाँ, अपीयरेंस पर्सपेक्टिव, हाँ पर्सपेक्टिव के हिसाब से। सो जो लड़की इन टर्म्स को ब्रेस कर रही है कि मैं बोल्ड हूँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, इंडिपेंडेंट, शादी में, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा मत करो। अगर आप हैं भी तो छुपा के रखो, दुनिया को कोई बताने की ज़रूरत नहीं कि आप बोल्ड हैं। आपने कुछ बोल्ड कदम उठाया है तो छुपा के रखो, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, नुकसान ही होने वाला है। क्या फ़ायदा होगा? कुछ नहीं। नो प्रॉफिट, ओनली लॉस। रियल एडवाइस। नो प्रॉफिट। बट टू के बारे में बात करते हैं। यू आर लीडिंग दिस फ्रेंचाइजी और it feels good actually, even as a viewer, to see you in that role, commanding that attention. आपके लिए what has it meant to lead this franchise? I think for the first time now, in Vad, me and Sanjay, we were husband wife. Okay, in Vad 2, we are not husband wife. We are not the same characters. We are the same actors. Correct. Yeah. You know, so it is a very nice, interesting way of doing a sequel. कि वो नहीं कि वो कहानी के बाद आगे क्या हुआ, आगे कुछ नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था कुछ। So I think it's a very interesting thing they are doing. मैंने पहली बार सुना है कोई किसी ने ऐसा किया है कि same actors but different characters. Correct. And the same Vad. Yeah. और संजय जी के साथ एक्सपीरियंस कैसे रहा है? Very nice. I hardly knew. I mean, I didn't know him. I mean, I knew of him, and we were very easy with each other. Yeah. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, ऐसा ही बह गए। And are you happy कि ये एक बहुत ही ये एक स्टेटमेंट है, राइट? Not in a very loud way, but in a way कि I'm here to also lead the film. Like, you know, you don't have to categorize me into a particular role, like a side role or a mother. How is that playing out for you? It's very nice now, but it was not good for me earlier, because earlier you needed to be categorized. नहीं, क्या नाम है, क्या word है? Stereotyped. Stereo. But it was good because then if somebody was casting ना, उसके लिए आपका ध्यान आता है. If I'm doing variety of roles, मेरे लिए मेरा ध्यान नहीं आता लोगों को. Because हमारे यहाँ ना एक्टर जो करता है लोग समझते हैं वो वही है. Yeah. कि वो डॉक्टर का कर रहा है तो वो डॉक्टर ही है. तो अगर मैं इतने अलग पार्ट्स कर रही हूँ, मैं अभी आप देखेंगे परसों से मैं तेरी में बिल्कुल अलग पार्ट है, पंचायत में अलग है, वध में एकदम अलग है. वध में आई एम अ प्रिजन इनमेट, बिल्कुल अलग है. सो अभी मैं एक कॉमेडी कर रही हूँ, बिल्कुल ही अलग है एकदम. एकदम सॉलिड कॉमेडी. You can do it all. Now I'm getting a chance to do it. You're getting a chance to do it all. So who is Neena Gupta 2.0?
what would you like to tell the world? Who's Neena Gupta? 2.0. 2? 2.0, you know, like अच्छा ये नया हाँ. वो है. Means what? that, you know, you're doing all of these things, like you're playing so many characters, you're finally getting your due, right? You're getting the opportunity. But I tell you, एक्टर का मतलब ही यही होता है कि आप डिफरेंट रोल करो. अगर ऐसा नहीं होता तो जर्नलिस्ट के रोल के लिए आपको लेते, कैमरामैन के रोल के लिए उनको लेते, Yeah. है ना, डॉक्टर के लिए रियल डॉक्टर को लेते. एक्टर का मतलब यही है कि यू कैन डू वैरायटी ऑफ रोल्स. पर अब इंडिया में तो बहुत ये चलता नहीं है. बट आई एम वेरी लकी टच वुड दैट आई एम नाउ एबल टू डू वैरायटी ऑफ रोल्स. I don't know, life हाँ, level. 2.0 क्या 2.0. क्या है 2.0? 2.0 is when नहीं, what do you want me to do? nothing, just how are you feeling, what like what. अच्छा मैंने बता दिया. हाँ, नहीं पता. What are you looking forward to in life now? Life, not just films, overall. Good health. Good health, so important. गुड हेल्थ नहीं, ना खाने का मज़ा, ना काम करने का मज़ा. So I have to keep reminding me of being a little more disciplined, especially food wise. When you grow old now, you like food more. Yeah. When you are young, you have so many other distractions. But when you are old, you only think of food. Yeah. And then good you food. have to have only 25% of what you used to eat. And now you want to have 125. So that's a major issue. That's what I think I'm going to work on. Okay. And the new year is coming. Any piece of advice to our viewers who are watching on living a good year? जैसा माहौल है हमारे यहाँ अभी, air pollution and all, and I would say to the youngsters, don't order so much from outside. It's a big problem. जो food order करते हैं हर, because you don't know what goes into that food. Even if you order a salad, try and eat home food. अगर आपके घर में कोई बनाने वाला नहीं है. जब मैं आई थी तो मेरा पैसे भी नहीं थे, बनाने वाला नहीं था, मैं अपने आप बनाती थी. सुबह का खाना उसी का बचा हुआ शाम को खाती थी. बट एक तो ये अवॉइड करना है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ लुक आफ्टर योर हेल्थ, एक्सरसाइज रिजीम. जिम में ज़्यादा ज़रूरत नहीं है जिम में जाने की, घर पे भी कर सकते हैं. सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक न्यू ईयर. Okay. Thank you, Neena ji. It's been so lovely to have Thank you. you. And may you keep coming on the show every year. अरे Please keep coming and मेरे chatting. पास कुछ बात करने को नहीं होगा, बात सारी हो गई. Thank you so much. ओके, थैंक यू. मैं थक गई.